So if you look at question number 9, this is a question which is trying to test your ability to understand rhetorics and construct of an argument. How an argument is built. अगर आप कोई चीज बोलना चाहते हो, कोई चीज समझाना चाहते हो, तो आप अपनी आर्ग्यूमेंट को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो, ये चीज यहाँ पे टेस्ट की जा रही है। ठीक है। हम्म, अब बोल क्या रहा है भाई, ये अ स्टडी बाय अ टीम इंक्लूडिंग फाइनेंस प्रोफेसर सो एंड सो suggests that the exposure to sunlight during the workday can lead to overly optimistic behavior. So if you get हम्म, sunlight, your behavior will be optimistic. ये इन्होंने सजेस्ट ऑप्टिमिस्टिक। किया है। So this is suggested, this is not concluded. इनको ऐसा लगता है हम्म, कि सनशाइन से बंदे का बिहेवियर ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, उन्होंने सजेस्ट किया है। Now it is हम्म, not proven. So in order to prove it, what are they doing? Using data spanning from this time to that time from these many companies and 29,000 annual earnings अर्निंग forecast to actual फोरकास्ट। forecast, they are comparing it, right? So they compared the data of 29,000 people starting from 94 to 2010, मतलब लगभग पकड़ लो 14 साल 16 साल के आसपास की ये स्टडी है, राइट। सो पहले तो वो सजेस्ट कर रहा है, उसके बाद उसने बताया कि उसने ये स्टडी करी है, राइट। यस सर। Now, so what they had some agenda, and in order to prove that agenda, they used this study. And what मेट्रोलॉजी। is the next thing? देखो, so you just have to understand the framework. The team found. Now, found means what? उन्होंने क्या दे पाया? गेट अ रिजल्ट। Yeah. Greater the exposure, sunlight, better, whatever. You don't have to go into the specifics. All you have to understand is how is the whole paragraph constructed. That's what the question is all about. Best states the ओके। function of the underlined sentence, which means what is the use of this part in the overall construct of the sentence. That is all you are supposed to figure out, right? What is the use of the underlined portion? Which means you are not supposed to know the specifics, you are supposed to know the framework. Framework means they set an agenda in this line that they want to study the impact of sunlight on optimistic behavior and stuff. And in order to establish it, they use this data. They collected this data, and this tells what result. वो कुछ जानना चाहते थे, उसको जानने के लिए उन्होंने ये स्टडी करी, ये तरीका अपनाया, और ये उनको रिजल्ट मिला। सीधी सीधी बात ये है, ठीक है। तो अगर इतना हमको समझ में आ ओके। जाए, तो हमें एक सीधे सीधे समझ में आएगा कि भैया ये जो ऑनलाइन पोर्शन है वो क्या है। वो मैथडोलॉजी है या वो तरीका है जिसके जरिए वो आंसर निकालना चाह रहा है, राइट। तो इट इज नॉट यस समराइजिंग सर। द रिजल्ट समराइजिंग करना तो करने का काम बाद में आएगा, अभी तक तो रिजल्ट मिला ही नहीं है। इट इज नॉट प्रेजेंटिंग एनी एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल देने वाली बात नहीं है। पार्ट ऑफ मैथडोलॉजी, सो दिस इज द की थिंग हियर, इट इज द पार्ट ऑफ व्हाट, मेट्रोलॉजी। part of methodology. Methodology means step by step स्टेप। process or step to accomplish a goal. So it is a part of methodology, right? So this is how you are ओके। supposed to answer these questions. होता क्या है, हम लोग बहुत ज्यादा जो गहराई है उसमें डूब जाते हैं, जिसको समझने की जरूरत नहीं उसमें पड़ जाते हैं कि भैया सनशाइन का क्या इम्पैक्ट होगा, होगा या नहीं होगा। हमें ये जानने की जरूरत नहीं है, हमें क्या समझने की जरूरत है, व्हाट इज द कंस्ट्रक्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ये जो पूरा पैराग्राफ है इसको किस तरह से आर्ग्यूमेंट को कंस्ट्रक्ट किया गया है। एक कोई उनको ओके। उनका एजेंडा था, उस एजेंडा को फुलफिल करने के लिए उन्होंने स्टडी करी तो ये पाया। यू अंडरस्टैंड दैट? सो दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। But what people do, they start understanding everything. Who is this finance professor Madhu? Whatever the name, what is he suggesting? Then what is it? So if you try to understand everything, you'll get lost into the jungle. If you just try to understand the framework, you'll get answers to most of the questions. Do you get it? श्योर। यस सर। So they are very easy questions, but there is a certain aspect of understanding and analysis that these questions try to test you on. और अगर आप उसके अलावा इधर उधर भटक गए कि चलो जी, जैसे बच्चे होते हैं ना स्कूल के, कि भैया सब कुछ पढ़ना है, एक एक वर्ड का मतलब समझना है और उसके बाद आंसर करना है, अगर वैसे करने की कोशिश करोगे तो आप
इसको स्टोरी की तरह पढ़ते चले जाओगे, पता ही नहीं लगेगा बोल क्या रहा है भाई। You understand what is यस it? सर। You are not यस सर। supposed to understand the specifics. You are supposed to understand बॉस मोटा मोटा फ्रेमवर्क क्या है इसका, इस हम्म अंडरलाइन पोर्शन का इस पूरे स्कीम में क्या रोल है, तो उतना पता हम्म करना है। अब वो कैसे कर रहा है वो सब करने की जरूरत नहीं है, रोल क्या है, कुछ जानना चाहते थे, कैसे जानना चाहते थे ये बताया है, और क्या आउटपुट निकला ये बताया है। ठीक है कि नहीं? यस सर। भैया मैं जानना चाहता था कि ये जो दवाई है अदरक की दवाई, इससे कोरोना की दवाई कोई बीमारी ठीक होती है कि नहीं होती है, ये जानने के लिए मैंने 500 लोगों को ये दवाई खिलाई, 500 में से 250 बच गए और 250 3 महीने बाद बच गए। तो मैंने कंक्लूजन हम्म निकाला कि 50% लोगों को तो इमीडिएट फायदा होता है, 50% लोगों को थोड़े दिन बाद फायदा होता है, लेकिन सब बच जाते हैं। बाद में। समझ गए? तो मेरी स्टडी का यस सर। पहले तो मेरी स्टडी का गोल था, मैं जानना चाहता था ये जो हम्म दवाई है वो कितनी अच्छी है। उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने 500 लोगों को पकड़ा, उनको दवाई दिलाई। ठीक है? और उसके बाद फिर मैंने उसके रिजल्ट्स को पब्लिश किया। तो ये होता है ना मोटा मोटी, नोट किया। जब कभी रिसर्च का कोई हम्म मुद्दा हो रहा होता है, ठीक है, एक सैंपल को उठाया जाता है, हम्म सैंपल के साथ में कुछ वट एवर दे डू एंड दे देन पब्लिश द रिजल्ट्स, राइट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड यस व्हाट, सर। you have to understand the framework of the argument. You are not supposed to go into the specifics. So every question which you will find here has a very clear goal, and you have to focus on that goal and study it from that perspective. और अगर हम उसमें ज्यादा ही ध्यान दे गए कि हम दिल दे चुके सनम की तरह हर क्वेश्चन को पूरा जान लगा के पढ़ूंगा मैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। हम्म ठीक है? ओके You सर। have to go very logically in understanding the question and understanding the essence of it. ठीक है? यस सर। अगले पे आ जाओ भाई, क्या है ये? फॉलोइंग सर टेक्स्ट इज 10th का मैंने रेफरेंस। सी मार्क किया था। थीम आ गई, शी क्रिएट स्टोरीज एंड पोएम्स फॉर हर चिल्ड्रन। बिल्कुल सही जवाब, 10,000 रुपये जीत गए आप। ठीक है? तो अभी कौन देगा ये मुझे नहीं पता, बट द आंसर इज करेक्ट, दैट इज व्हाट इट इज, यस सर। राइट? बहुत बढ़िया। यस सर। अगले सवाल पे आ जाओ जरा, 11वें पे। यहाँ क्या हो रहा है? सर पोएम थी सर 11। हाँ एक पोएम थी। और ये थोड़ा सा मतलब ट्राई किया मैंने इसको समझने को, पर हम्म। समझ नहीं आया था मेरे को कि तो मतलब जरा क्या पोएट हो वोएट रहा है बन इसमें। जाओ। अभी क्या है कि पोएट बनना पड़ेगा आपको, क्या है, मैथ के लिए उनको, और वो राम धारी सिंह दिनकर उनकी कविताएं पढ़ना पड़ेंगी आपको, तभी समझ में आएगा। Anyways, the ओके। point here is that this guy, some Maggie Shaggy, 1910 की पोएम है। क्या बोल रहा है? हम्म दो विथ स्ट्रोक ऑफ माइटी पेन। अब माइटी जो है इट्स अ पॉजिटिव एडजेक्टिव, बोल रहा है ह्यूज कि बड़ा। बहुत अच्छा पेन, बहुत बड़ा। हाँ, माइटी पेन हैज टोल्ड हम्म, ऑफ जॉय एंड मिर्च, मतलब मे- दुख और सुख और पूरे जो खुशी की बातें हैं तुमने माइटी पेन से लिखी हैं, बड़ी अच्छी बात है जी। हम्म, And हम्म, read the hearts and sounds of men as credited from their birth, मतलब तुम दुनिया में लोगों को हम्म, समझ पाए हो। The हम्म, language of the flowers, though has read them all, and the little book responded to thy call। तो भाई ये कुछ तारीफें भरी बातें नहीं लिख रहा कि तुम बड़े महान हो, तुमने अपने पेन हम्म, से बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, लोगों के दिलों को समझा है, और हम्म, फूलों की बातें लिखी हैं, और ऐसा है और वैसा है। तारीफें नहीं हो रही? ओके। हाँ। अरे तारीफ हो रही है कि नहीं हो रही है मेरे भाई? दो, और दो मतलब यू, ये जरा पुराने जमाने की अंग्रेजी है, जब रविन्द्रनाथ टैगोर भी पैदा नहीं हुए थे। ठीक है? उससे भी ओके। पहले की। तो या हो गए होंगे, मुझे नहीं पता। बट द पॉइंट इज दिस इज लाइक ओल्ड स्ट्रक्चर, ये दो वो करके लिखते हैं ना जो, सो दिस इज ऑल ओके। ओल्ड इंग्लिश। तो बेसिकली यहाँ ओके। पे वो बोल रहा है, वो राइटर की तारीफें गा रहा है कि ओके। तुमने अपने पेन से बहुत महान महान बातें लिखी हैं आदमी के बारे में, और फ्लावर्स के बारे में, और उसके बारे में पूरी किताब भर दी है। तो ये क्या कर रहा है? अब इसमें आपको क्या करना है, जब भी कोई ऐसे पढ़ने के, सो दैट इज व्हाट इट इज। सी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पोयम को पढ़ते हैं पोयम की तरह, एक एक वर्ड को, जबकि आपको उसके हाँ। पूरे एंटायर मैसेज को पढ़ना है, मोटा मोटी बोल क्या रहा हाँ। है। एंड
Always हाँ remember there are two things. One is the content, second is the ओके tone. दो ओके चीजें होती हैं किसी भी चीज को समझने के लिए। क्या दो चीजें होती हैं? कंटेंट और कंटेंट टोन, एंड टोन है ना? अब मैंने बोला अच्छा चल शशांक बोल, मतलब चल जवाब दे बेटा, ठीक है? तो आई एम कमांडिंग, ठीक है? हाँ और अगर मैं आपको बोलूं अच्छा शशांक प्लीज प्रेजेंट योर आइडियाज, तो मैं कमांड नहीं कर रहा हूँ, बोलने को तो बोल रहा हूँ लेकिन आपको मैं बहुत ही विनम्रता से बोल रहा हूँ। तो यस सर तो वन इज द कंटेंट, अदर इज द टोन। तो टोन यहाँ पे अगर आपको ओके कंटेंट नहीं समझ में आए तो टोन पे ध्यान दो। आप टोन से भी ओके समझ जाओगे कि बात किस बात की चल रही। भैया तुम्हारा बहुत ही माइटी पेन है, उससे तुम अच्छी अच्छी बातें आगे वर्ड्स का मतलब नहीं पता, उसके आगे डा 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 कर दो। हैज ओके टोल्ड जॉय एंड मिर्थ, अब जॉय का मतलब तो समझते हैं, मिर्थ का हैप्पी मतलब नहीं खुश पता। हाँ, हाँ खुशी। और मिर्थ का मतलब नहीं पता तो बोले जॉय एंड डा डा डा। यू डोंट ओके हैव टू नो द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड। कोई वर्ड ना बताओ तो क्या बोलोगे? डा 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 शाबाश। आज से आपको ओके दुनिया के हर वर्ड का मतलब पता है। यू नो द होल vocabulary of the world, because if you don't know the meaning of the word, what is the meaning of it? डा 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 शाबाश। दुनिया का कोई ऐसा वर्ड है जिसका मतलब आपको नहीं पता? इससे सारे पता है आधे आधों का तो मतलब पता है, जो बच हाँ गए उनका क्या मतलब है? डा 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 बहुत बढ़िया मेरे भाई। So this is how you are supposed to, because see, nobody can know all the words of the world, right? ओके मगर यस सर आसपास के जो वो होते हैं ना, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट हाँ मतलब जो लिखा हुआ है उसे अंदाजा तो लगा ही सकते हो ना। हाँ हाँ देखो, इंटेलिजेंस लिमिटेड है लेकिन कॉमन सेंस अनलिमिटेड है। यस सर तो कॉमन सेंस की तरफ जाओ, इंटेलिजेंस की तरफ मत जाओ कि मैं पढ़ पढ़ के जो है ना दुनिया का आइंस्टाइन बन जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा दुनिया का कोई भी इंसान और नहीं है जिसका अज्ञान ज्ञान से ज्यादा हो। सर थिंक। यही प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही थी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो हम्म। मेरे को मतलब मेजॉरिटी मीनिंग्स नहीं पता थे तो उस टाइम थोड़ा सा फियरफुल हो गया था मेरे लिए कि मेरे को मतलब सारे कितने ऐसे वर्ड्स होंगे जिनको मेरे को याद करना पड़ेगा लाइक थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स निकल जाएंगे तो बच्चे आज से तुम्हारी चिंता मैं दूर कर देता हूँ, तथास्तु। मस्त हो जाओ। ऐसा दुनिया का कोई वर्ड नहीं है जिसका मतलब तुम्हें नहीं पता, ठीक है? अगर नहीं पता तो क्या बोलोगे? डा 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 बोल बहुत बढ़िया। कोई वर्ड या तो आपको उसका मीनिंग पता है, नहीं पता तो डा डा डा। पॉइंट इज यस कि सर आप आसपास के वर्ड से there will not be any one question where just one word will decide the meaning of the whole question. समझ में आ रहा है? ऐसा कोई क्वेश्चन यस दुनिया में नहीं होने वाला जो किसी एक वर्ड पर निर्भर करेगा। यस सर ठीक है? तो आज से बिल्कुल एकदम छुट्टे खिलाड़ी बन जाओ। क्या बन जाओ? खिलाड़ी हो छुट्टे खिलाड़ी, मतलब जिसको सब पता है। हाँ आजा, आजा बेटा आजा। हाँ, ठीक है। So you need to go with that kind of confidence, because you have to be reasonable. You cannot always be rational. रैशनल Rational means भैया मुझे पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता। अरे भैया, तो ये अंदाजा लगाने वाली चीज भी तो होती है ना। यस सर जुगाड़, जुगाड़ नाम की चीज होती है कि नहीं होती यस सर है ना? तो आपको ऐसे तो यू हैव टू, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, देयर आर टू थिंग्स इन एवरी मैसेज: कंटेंट यस एंड टोन. If you टोन don't understand the content, focus कंटेंट on टोन tone. कि किस टोन में बोल रहा है। यस सर माइटी पेन, बड़ा जोरदार पेन है तेरे को, भगवान जी ने पेन दिया है बहुत जोरदार। उससे तूने बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं जॉय के बारे में, ये और वो। एंड रेड द, लोगों के दिलों को पढ़ा है। मतलब ये तारीफें नहीं कर रहा किसी की। क्रेडल्ड फ्रॉम द बर्थ, लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स, तूने फूलों की भाषा सीखी है। मतलब तू भाषा तो भगवान। हाँ, ठीक है। और ये वो रिस्पॉन्डेड टू द कॉल, तो क्या है? जरा देखते हैं। प्रेज अ सर्टेन राइटर, कर रहा है क्या? प्रेज कर रहा है क्या? हाँ या ना? सब प्रेस कर रहा है प्रेस कर बहुत रहा है बढ़िया। तो एक ओपन रख लो, कीप। अब हम कौन सा गेम ठीक है खेल रहे हैं भैया? अब हम खेल रहे हैं द गेम ऑफ कीप एंड कीप एंड थ्रो। थ्रो वाला यस सर शाबाश। तो ए को हमने किया कीप, अब आ जाओ बी पे।
establish that a certain writer has read extensively about a variety of topics, कि बेटा तूने बहुत ज्यादा ही पढ़ाई कर ली जिंदगी में। हाँ रख लेते हैं चलो, इतना बुरा हाँ। ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि तारीफ में ही कुछ बोला जा रहा है। सी का यस क्या सर। करें? Call attention to a अटेंशन। certain writer's careful and elaborately detailed writing process। अब भैया प्रोसेस की तो बात हुई नहीं कि स्टेप बाय स्टेप, पहले तूने हाँ। पेन की को छीला, फिर उसके बाद तूने लिख, उसके थ्रो अंदर। कर थ्रो। तो प्रोसेस को पता है नहीं, थ्रो करो उसको खिड़की से बाहर। डी को क्या करना है? टू नहीं सर, रिकाउंट। थ्रो सर, ये। तो ए और सी और डी को तो आपने फेंक दिया, अब बचे ए और बी। हाँ, ए और बी में से ए जो होना चाहिए बिल्कुल ही सर। एकदम जो स्ट्रेट है, एकदम बिल्कुल सौ सुनार की एक लोहार की टाइप का आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये कि नहीं? यस। एकदम यस सर। शर्मिला टैगोर टाइप नहीं, एकदम बिल्कुल हाँ। संजय दत्त स्टाइल में, क्या हाँ यही है भैया, जी हाँ मैं हूँ यस सर। खलनायक, राइट? यस तो सर। लाइक दैट। So don't try to don't go with rationality all the time. रैशनल। Try to be यस। reasonable. रीजनल। Reasonable मतलब मतलब supported कॉमन by सेंस या। reason. हाँ Exactly, बहुत सही, common sense। अब जरा 11, ये कौन सा 11वां था ना? हाँ, 12 था हाँ, सर। नेक्स्ट। अब आ जाओ 12वें पे। तो हाँ, क्या करना है भाई? इसमें बस पोयम के बारे में बताया कि पोयम इस चीज के बारे में, कुछ पोयम कुछ लिखी नहीं थी उसने। नहीं एड्रेस डायरेक्टली, नॉट फुल्ली। वो बोल रहा है कि जिन लोगों ने, टू यू इज ए कोई कोई पोयम है, और इसमें वाइटमैन ने ये अपने उद्गार प्रस्तुत करे हैं। क्या प्रस्तुत किया है? whom he addresses directly have not fully यस सर। understood themselves। वो लोगों को बोल रहा यस है सर। कि भाई तुम अपने आप को पूरी तरह समझ नहीं सके हो। मेरे को बहुत इसका गहरी। आंसर ए लग रहा था। तो लग रहा था तो मार दो उसको, बहुत बढ़िया, यही है और क्या। क्योंकि कंफ्यूजन कुछ किस कुछ चीज इसकी का है? बातें मैच हो रही थी ऊपर क्वेश्चन से, यू इसलिए हैव मैंने नॉट ए मार्क नोन किया व्हाट था। यू आर, बिल्कुल। because so this is pretty much answering the question, why should you doubt your intelligence? ए है तो ए है। नो, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम का ऐसा क्वेश्चन मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था, तो मेरे को पता नहीं था कि इसको किस तरीके से करना है, कैसे नहीं करना है, क्या इसकी अप्रोच होगी। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन 11th में था कि हम्म। पोयम को कैसे पढ़ना है, उसकी फाइंडिंग क्या है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरे को लगा कि इसमें तो पोयम का बस थोड़ा सा ग्लिम्स दिया है और पोयम कुछ लिखी नहीं है, तो उसको मैं कैसे आंसर करूं। पर जितना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ में आया कि वो एक सेकंड पर्सन के पर्सपेक्टिव से कुछ कह रहा है, तो मेरे को आंसर ए में वो चीज दिखी, तो मैंने ए मार्क किया था। बहुत बढ़िया। This is absolutely correct. And that is the only option where the word you is used. Rest of them, if you हाँ, can यू। see, they are saying I, yeah, these हाँ immense meadows. A is the हाँ। only option where it is addressing the other person. बहुत बढ़िया। तो इस अदर तरह से पर्सन। आप निकाल सकते हो। So this is how you have to get the answers, right? This is यस what सर। we call as creative thinking or thinking out of the box. You are not supposed to be the slave of your own intelligence. That, oh, I have to understand things, then only I'll answer. Try to be reasonable and रीजनेबल। jugadu and presence of mind, work with presence of mind rather than thinking, oh, ऐसा वैसा। कोई फॉर्मूला नहीं है इसका दोस्त, और यस सर। यही जिंदगी का भी सत्य है। देर इज नो फॉर्मूला, यू हैव टू डू व्हाट इज राइट इन द मोमेंट। यस सर। ठीक है, आई हैव टू अगले बी पे आ जाओ। रीजनेबल। यू हैव टू बी रीजनेबल ऑल द टाइम। यस सर। इसके ऊपर एक लंबी कहानी है जो मैं कल सुनाऊंगा, बट अभी हम जरा क्वेश्चंस करते हैं। आ जाओ 13th पे। 13 का भी ए ही मार्क किया था सर मैंने। चैम्बी took many commissioned, बहुत सही है, ये करेक्ट है, portraits of wealthy Peruvians, but he also produced hundreds of images carefully documenting the people's sites and customs of ये। तो चंबी भैया जो हैं, वो कई चीजें तो हम्म। पैसे के लिए करते हैं और कई चीजें शौक और वो के लिए दोनों करते चीज हैं। दिखाता है वो। हाँ, उसने कई कई गरीब लोगों को भी पिक्चर्स बनाए हैं और कई अमीरों को भी बनाए हैं। तो यही बात ए हम्म। में जाहिर हो रही है कि ही टुक द मैनी कमीशन पोर्ट्रेट्स, which means for the which was for the purpose of earning money, and हम्म। the others were for the purpose of what do you call uh,
पोर्ट्रे और शो। Yeah. So the others were just for the purpose of showcasing this life of Peru or some country. Which country is that? मैक्सिकन Peru. कंट्री Yeah, थी, पेरू जगह थी आई थिंक exactly. कोई। Yeah. तो सही है 13th का ये। इसके बाद कौन सा 14th भी किया आपने? नहीं सर, 14 नहीं किया था। 14 ने आपको क्लीन बोल्ड कर दिया। हाँ सर। अब जरा ध्यान से सुनना आप इसकी भी कहानी हमारी जबानी। सो यस सर। बेसिकली जब कभी आपको कोई डेटा मिले, कोई टेबल मिले जिसके अंदर कुछ संख्याएं, कुछ नंबर्स दे रखे हो, तो आपको दो यस सर। चीजों को जानने का प्रयत्न करना है। क्या चीजों को ओके जानने सर। का प्रयत्न करना है? नंबर वन, इफ दो देर इज चीज। एनी आउटलायर, एंड नंबर टू, इफ देर इज एनी सम काइंड ऑफ ट्रेंड। ओके। ट्रेंड मतलब जो लगातार चल रहा हो, बढ़ रहा हो या घट रहा हो। जैसे आजकल यस रोज सर। बारिश हो रही है, दिस इज अ ट्रेंड। और यस सर। अचानक से किसी एक दिन जो है ना 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए, तो दैट विल बी एन आउटलायर। So trend is आउटलायर। something which is common, which is repeating, and outlier is something हम्म। which is outlier. तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, ओके। do not pay attention to all the minor details, pay attention only to the important part. अब ये पता कैसे लगा important क्या है? तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। Don't read the premise first, read the question क्वेश्चन। first. ठीक है भैया? Which choice यस most सर। effectively uses data from the table to complete the example? तो एग्जाम्पल वाली एग्जाम्पल। बात बोल रहा है, तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। क्या बोलना चाह रहे हो तुम यहाँ से? इन फैक्ट, so many films and associated records for this era have been lost. मतलब यहाँ पे कुछ हीरो लोगों के नाम है, ईयर्स के नाम है, उन्होंने कितनी फिल्में एक्टिंग की, कितनी फिल्में डायरेक्टिंग की, कितनी फिल्में राइटिंग करी, ये सब दुनिया भर की डेटा दे रखा है। अब ये हमारे को ज्ञान देता हम्म। है, बोलता है भैया इतना सारा डेटा इज लॉस्ट। कहाँ गया? सो मेनी हम्म। फिल्म्स एंड एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स फॉर दिस एरा हैव बीन लॉस्ट, दैट काउंट्स ऑफ दोज फोर फिगर्स आउटपुट शुड बी टेकन एज बेयर मिनिमम रादर देन टोटल्स। तो ये जो नंबर दिए हैं, ये क्या है भैया? ये बेयर मिनिमम है। बेयर मिनिमम। ये एक्चुअल टोटल नहीं है। मतलब ये जो ओके। जेम्स यंग डियर है, इसकी 33 यस सर। फिल्में ही अवेलेबल हैं जिसमें इसने एक्टिंग की थी। बाकी सबका क्या हुआ? हम्म। बाकी सब धूल में मिल गई। मिल क्यों? गए। अरे समय भी तो कोई चीज होती है ना। समय के साथ यस साथ सर। तो अच्छी अच्छी चीजें निकल लेती हैं। तो यहाँ पर इसकी हम्म। फिल्में आधी निकल गई, अभी सिर्फ 33 पड़ी हैं। उसी तरह से जो 35, सो दिस इज अगेन, दीज नंबर्स आर व्हाट? These numbers are the bare minimum numbers. They are not the बेयर मिनिमम। actual. They are not the actual numbers. एक्चुअल Why? फिगर। Because many of those movies were destroyed during the passage of time. डिस्ट्रॉयड। Right. That's पैसेज ऑफ what it टाइम। is saying. अब इसका यस हमें सर। एग्जाम्पल बिठाना है कि भैया इसी बात को यहाँ पे हम कैसे समझा सकते हैं। तो एक एक को उठा के देखो, कीप और थ्रो का गेम खेलो। Dark Cloud acted in ओके। significantly fewer films than did Lillian ST. डार्क क्लाउड ने लीलन एसटी से ज्यादा या कम मूवीज में काम किया। तो हमें दो लोगों के बीच में कंपेयर थोड़ी ना करना है, ये फालतू बात है। हाँ। ये है वही उसने दे रखा है, हटाओ इसको, फेंक दो। एडविन क्रू 47, ये चाचा 47 क्रेडिटेड एक्टिंग रोल्स इंक्लूडिंग ओनली फिल्म्स मेड आफ्टर 1934। अरे हमें क्या पता 34 के बाद में, 34 के पहले, इस डेटा से तो पता लग नहीं रहा। और उसका कोई मतलब भी नहीं है, तो बी भी वैसे ही फालतू का डेटा दे रखा है। फेंको इसको बाहर। यस सर। लिलियन चाचा एक्टेड इन फार मोर देन 66 फिल्म्स। लिलियन चाचा एक्टेड इन मोर देन 66 फिल्म्स। हाँ सही है, क्योंकि यहाँ तो 66 ही हाँ। दे रखा है। एक्चुअल में तो उसने यस सर। ज्यादा मूवीज में काम किया होगा ना। एंड एडविन यस सर। चाचा डायरेक्टेड मोर देन 58। एडविन 58 चाचा ने फिल्म। 58 से ज्यादा करी होंगी। सी जो है वो मेरा बिल्कुल पक्का आंसर है, तो रख लो। हाँ। ठीक है। ओके। और यही बोल रहा है ना कि कई जो है वो लॉस्ट हो गए। तो भैया यही बन रही कहानी। जेम्स यंग डियर, हु इज जेम्स यंग डियर? हियर ही इज। जेम्स यंग सर डियर ये तो फिट एक्चुअली नहीं बैठेगा। डायरेक्टेड 33 फिल्म, एक्टेड ओनली इन 10। तो उससे क्या फर्क पड़ और रहा है? एक्टेड उसने 33 किया है। हाँ। तो
निर्जीव सी तरह से, ऑप्शन तो होना आंसर चाहिए। बन एग्जैक्टली, समझ में आया? तो अगर आप ये सब पढ़ते यस। नहीं, देखो आप इस चीज की ब्यूटी देखो, आपने ये तो पढ़ा ही नहीं इतना सारा, हाँ। ये तो पढ़ा ही नहीं, उसके बिना ही आंसर कर लिया। तो दिस इज व्हाट इज द मैजिक। द मैजिक इज, डू नॉट रीड फास्ट, रीड लेस, read only the part which is important to get the answer. हम्म। आपके पास एक आदमी लंगड़ाता हुआ आया और बोल रहा है कि मेरे को जुकाम हो गया, और आप जुकाम के डॉक्टर हो, तो आप उसकी टांग ठीक करोगे क्या? नहीं। आप तो जुकाम के डॉक्टर हो, तो आप जुकाम ठीक करोगे? बोले तो लंगड़ा रहा तो लंगड़ाता रहे, वो मैं ठीक ही नहीं कर सकता। दैट इज व्हाट इट इज, यू हैव टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम दैट यू कैन सॉल्व, एंड हियर the problem can be known only by reading these three sentences. So why would you bother to read the rest of it? ठीक है? तो हमेशा यस आपको सर। दिमाग ये लगाना है कि कम से कम इंफॉर्मेशन पे फोकस किया जाए, ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने आप में तभी फीड की जाए जब उसकी जरूरत जरूरत हो। हो। गॉट इट? यस सर। तो ये यस सिंपल सर। लॉजिक लगाओगे ना, आपके एक भी सवाल गलत नहीं होंगे, एंड यू विल स्टार्ट लविंग दीज क्वेश्चंस बिकॉज दे आर सो लवली that you just have to apply a little bit of logic and understand what is the best route to get the right answer, and you will get right answer. In the same manner, if you do 2 to 3 full tests, every single question like this, and you understand the strategy, how to reach to the right answer, what is the purpose of the यस सर। question, you will never go wrong. You will become a master, a champion after doing 3. अब आप फिर जाके यस सर। सेट देखो, देखो देखे जरा कैसे मार्क्स नहीं आते, नहीं आए तो मैं अपने मुंह से बढ़वा लूंगा, कटी हुई तो पहले से ही है ना। हाँ। तो so this is what it is. You have to understand the basic logic and do यस सर। things using the right strategy. And being reasonable is better than being rational. ठीक है? चलो जी, हो गया। उसके बाद ये वाले सवाल करने हैं आपने भी ना। So 15th onwards यस you सर। can do now 15 to 24 and we'll check them together. फटाफट। ओके।